Hello everyone, very good morning my dear 4th class kids. Welcome to Phoenix International Group of School and welcome back to our 16th session. So children, please take out your textbook, EVS textbook of 4th class, okay? I hope you all have purchased the textbook and watching my video along with the textbook, right? You must watch the video along with the textbook, all subjects video children, okay? So that it will be easy for you to understand. So everyone, on page number 25 we have seen that in our last video only we have started a lesson, right? 5th lesson, that is houses. 5th lesson name was houses, okay? Now this lesson only we have to continue houses. What do you mean by the houses children? जो हमारे मकानात होते हैं, जो हमारे मकान होते हैं सबके, उसको हम बोलते हैं houses, okay? जैसे आपका भी एक house है, and even I have a house, my friend is also having a house, so we all have house children, okay? Now why do we need a house? House हमको क्यों चाहिए? We need a house to live in, उसमें रहने के लिए. So by living in that house, what will happen children? We can protect ourselves. We can protect ourselves from heat, cold, rain, wild animals, thieves and bad weather. Sometimes conditions भी बहुत ख़राब होती है and we cannot stay outside. So for protecting from them all, what we have to do? We need a house to stay in that. Okay children. Now we have some different kinds of houses. We have some different kinds of houses. Okay. Can you tell me what are the different kinds of houses? We have kacha house, pakka house, multi-storied house and bungalow and slanting roofs, houses with the slanting roof, stilt house, houseboats, right children? So we have so many number of different kinds of houses. Different kinds of houses क्यों होते हैं? According to the situation and according to the environmental situation, economical situation, people makes the different kinds of houses children, okay? So along with so apart from that, till where we have completed? Till bungalow we have finished, right? Today we will start a new one. Houses with slanting roof. Houses with slanting roofs. Let's read. So I am here children, okay? Here. Houses with slanting roof. इसका मतलब क्या हो गया कि हाउसेस कैसे बनाना? जो रूफ़ होती है ना, ऊपर की जो छत होती है वो स्लैंट पोजीशन में होती है. स्लैंटिंग मीनिंग थोड़ा सा झुका हुआ, ओके? जैसे लाइक सपोज इफ़ दिस इज़ अवर हैंड, ओके? सो दिस इज़ अ स्ट्रेट हैंड और दिस इज़ अ स्ट्रेट हैंड, राइट? But if we are keeping our hand in this position, in a slanting position, so this is nothing but slanting roofs children, okay? So roofs क्या हो गया कि थोड़े से slant में रहना, थोड़े झुके हुए रहना, तो उसको बोलेंगे हम slanting roofs. Now some areas in the world experience heavy rainfall. कुछ एरियाज जो हमारे वर्ल्ड में है वो लोग क्या होता है, वहाँ पर बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है. एज रिसेंटली वी ऑल्सो हैव फेस्ड अ हैवी रेनफॉल, राइट चिल्ड्रन? कि हम भी क्या कर रहे हैं कि बहुत हैवी रेनफॉल को फेस किए हैं रिसेंट सिचुएशंस में. इन दिस एरिया देयर हाउसेस ऑफ स्लैंटिंग रूफ. सो वैसे एरिया में उनके हाउसेस को क्या होते हैं? स्लैंटिंग रूफ होती है. जो घर की जो छत होती है ना वो थोड़ी सी स्लैंट पोजिशन में होती है, झुकी हुई होती है. The water quickly drains out from the roof and doesn't damage the house. Okay. Now, if I take the plate children, अगर मैं एक प्लेट पर वाटर डालूँ, ओके? अगर मैं एक प्लेट में वाटर डालूँ तो वो क्या रहेगा? वाटर वहाँ पर स्टे करता है, वाटर रुकता है, ओके? वही अगर मैं प्लेट को थोड़ा सा नीचे झुकाकर स्लैंट पोजीशन में अगर मैं वाटर डालूँ तो क्या रहेगा वो? नो, इट कैन जस्ट कम आउट चिल्ड्रन, राइट? इट कैन रन आउट एंड जस्ट फ्रॉम द रूफ, राइट? सो वो वहाँ पर वाटर प्लेट में नहीं रहेगा, ओके? गिर जाएगा वो वाटर. तो वैसे ही इसीलिए फॉर व्हाट दैट पीपल डू चिल्ड्रन इन दैट एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, दे यूज टू मेक व्हाट? स्लैंटिंग रूफ्स बनाते हैं ताकि जो भी वॉट एवर द रेनफॉल इज कमिंग, दैट रेनफॉल शुड नॉट स्टैंड ओवर देयर एंड इट कैन बी ड्रेन्स आउट, ओके? स्लैंटिंग रूफ्स आर ऑल्सो यूजफुल इन द एरियाज ऑफ स्नोफॉल. सो जहाँ पर स्नोफॉल भी होता है, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे हमारे पास लाइक सम कंट्रीज़ कश्मीर एंड ऑल, ओके? सो वहाँ पर क्या है कि स्नो भी गिरता है. तो जहाँ पर स्नोफॉल होता है वो एरियाज़ में भी स्लैंटिंग रूफ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ताकि स्नो गिर जाए एंड जब स्नो मेल्ट होता है तो वो भी वाटर ही बन जाता है, ओके? सो वो ईजिली ड्रेन्स आउट हो जाए, इसीलिए वहाँ पर स्लैंटिंग रूफ्स बनाते हैं. इट स्लाइड्स डाउन एंड डजंट कलेक्ट ऑन द टॉप. वो क्या करता है? नीचे गिर जाता है, अपना जो रूफ़ होता है वहाँ पर
ठहरा हुआ नहीं होता है, इट डजंट स्टॉप ओवर देयर। रूफ्स ऑफ सच हाउसेस आर मेड ऑफ स्लेट और सम अदर लोकल मटेरियल विच इज़ स्लिपरी। सो उसके रूफ किस मटेरियल से बनाए जाते हैं? ऐसे मटेरियल जो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो, ओके, थोड़े चिकने रहना, स्टिकी नहीं रहना है, ओके, स्लिपरी काइंड ऑफ ए मटेरियल से बनाते हैं ताकि वाटर स्लिप हो जाए डाउन। Is it okay children? So you can see in the picture also these houses, they are having what? I'll show you. See this here, these house, what is there? Roof are in a slanting position. You can observe here this picture and this one and this side of the house, okay. How is the position of the roof? It is in a slanting position, half this side and half this side, so water cannot stop over there, it can drain out easily children, okay. Now coming up to the next one, turn up your page and come to the page number 27. Houses in boats, okay. बोट्स में क्या होते हैं चिल्ड्रन? हाउसेस होते हैं, जिसको हम ईजिली नेम बता रहे हैं हाउस बोट्स, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट यू मीन बाय द हाउस बोट। बाय सीइंग द पिक्चर कैन यू टेल मी? यस, बोट में क्या बना हुआ होता है? हाउस बना हुआ होता है। लेट्स सी, सम पीपल हैव टू लीव ऑन लेक्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एंड कुछ पीपल क्या करते हैं, जैसे वी कैन टेक द मर्चेंट, राइट, कुछ गुड्स को जो सेल करने, प्रोडक्ट को जो सेल करने बैंक के पास जाते हैं चिल्ड्रन, राइट। वो बहुत टाइम तक के किसी सीज़ या ओशन, जैसे हमारे फिशरमैन्स होते हैं, ओके, वो फिशेस को कैच करने के लिए, फिशेस को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, कई सारा अपना वक्त वहीं पर सीज़ और ओशंस या फिर लेक्स पर रह जाते हैं वहाँ पर, ओके, ताकि वो लोग अच्छे से अपने फिशर्स एंड ऑल को कैरी कर सके। तो वैसे पीपल को क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अपना टाइम लेक्स के पास ही रहना पड़ता है। दे मेक देयर हाउसेस इन बोट, सो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि अपना हाउस जो है वो बोट पर ही बना देते हैं। सच बोट्स आर नोन एज हाउस बोट्स, सो वैसे बोट्स को हम क्या बोलते हैं? हाउस बोट्स बोलते हैं। एंड दीज हाउस बोट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दी कच्चा हाउस, दिस पक्का हाउस, दैट इज़ मल्टी स्टोरेड हाउस, बंगला एंड अवर स्टिल्ट हाउस एंड ऑल, ओके। ऑन द लेक इन कश्मीर वी कैन सी मेनी हाउस बोट्स, तो हम ये हाउस बोट्स को कहाँ देख सकते हैं? कश्मीर में हम जो लेक है हमारे पास डल लेक, वहाँ पर हम ये हाउस बोट्स देख सकते हैं। इन साउथ इंडिया टू, साउथ इंडिया में भी हम इसको देख सकते हैं। वी कैन सी हाउस बोट्स एंड सम प्लेसेस लाइक द स्टेट ऑफ केरला, केरला के स्टेट्स जो होते हैं कुछ, वहाँ पर भी हमको ये हाउस देखने मिलता है चिल्ड्रन, ओके। विच हाउस वी कैन सी? येस, हाउस बोट्स वी कैन सी चिल्ड्रन, ओके। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन, हाउसेस इन फ्लड प्रोन एरियाज, houses in flood prone areas. So before starting this I would like to discuss that regarding our current situation children, okay. Nowadays what is happening children कि हमारे पास भी कई सारा flood आ रहा है। in Hyderabad also we are facing some danger, okay, we can say here वेरी डेंजर काइंड ऑफ ए फ्लड वी आर फेसिंग, ओके। कई सारे घर जो है उसमें पानी चला जा रहा है एंड कई सारे वो बिलोंगिंग्स जो है वो पूरे फ्लो ऑफ हो रहे हैं, वाटर में बह के चले गए एंड कई बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, ओके। ऐसा क्यों हुआ है कि वहाँ पर घर के पास स्लोप होगा उनके पास एंड सारा वाटर जो रिवर एंड सीज ओशंस के करीब, सीज के पास जिसका भी रिवर है, हाउसेस है रिवर के करीब में, वहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर पूरा अंदर आ जा रहा है वो लोग के, ओके। तो वैसे में क्यों आ रहा है वो? क्योंकि वो लोग के जो हाउसेस हैं वो रोड्स के इक्वल हैं। क्या है? रोड्स के इक्वल है। अगर हाउस थोड़ा सा ऊंचाई पर रहता तो क्या वाटर आ सकता? नो, वाटर नहीं आ सकता, ओके। शायद वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना तो तभी वो अंदर आ सकता है, अदरवाइज द वाटर कैन नॉट रीच इनसाइड चिल्ड्रन, ओके। सो फॉर दैट सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन के लिए कई सारे ऐसे विलेजेस एंड सिटीज़ एंड ऑल होते हैं जहाँ पर ऐसे सिचुएशन फेस करनी पड़ती है फ्लड्स की। तो वो लोग क्या करते हैं कि वाटर अपने घर में ना आ जाए, इसीलिए वो लोग हाउसेस को अपने थोड़े ऊंचाई पर बनाते हैं, ओके। व्हाट दे डू चिल्ड्रन, वो लोग अपने हाउसेस को थोड़े से ऊंचाई पर बनाते हैं, ओके। नाउ वी विल सी हाउसेस इन फ्लड प्रोन एरिया। यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, राइट? आर यू एबल टू सी इन द डायग्राम व्हाट दे आर डूइंग? They made their houses, they raised the platform of the houses children. Now some areas of the world experiences floods in rainy season every year. हर साल कुछ एरिया में क्या करते हैं लोग? रेनी सीजन का एक्सपीरियंस करते हैं। So people in such areas make stilt house. ऐसे टाइप के हाउसेस को क्या बोलते हैं हम? स्टिल्ट हाउस बोलते हैं। तो वहाँ पर ऐसे पीपल जो फ्लड को एवरी ईयर फेस कर रहे हैं, दे यूज़ they makes what? Stilt house they makes. Now what is this stilt house? Let's see.
स्टिल्ट हाउसेस आर मेड ऑन ए रेस प्लेटफॉर्म सपोर्टेड बाय वुडन पिलर्स। ओके, स्टिल्ट हाउस थोड़ा सा उसको रेस कर कर ऊपर की तरफ ऊंचा उठा करके बनाया जाता है, और उसको क्या कर रहे हैं कि वुडन पिलर से सपोर्ट दिया जाता है। दीज हाउसेस आर सेफ ड्यूरिंग फ्लड्स बिकॉज दे स्टैंड हाई अबव द ग्राउंड। ये हाउसेस जो होते हैं वो हमारे जो फ्लड्स, रेनी सीजन में जो फ्लड्स आता है मोस्टली, उससे हमको सेफ रखते हैं। ओके, सो दीज हाउसेस आर सेफ। ये हाउसेस बहुत ज़्यादा सेफ है, कभी जब फ्लड आ जाता हो। ओके, बिकॉज दे स्टे अबव द हाई अबव द ग्राउंड चिल्ड्रन। ओके, दे स्टैंड, ये अपने बहुत ग्राउंड के ऊपर तक रहते हैं, ऊंचाई पर बनाते हैं इसको। ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड? राइट। हाउसेस इन द आर्टिक रीजन। नाउ आर्टिक रीजन में हाउसेस कैसे होते हैं? लेट्स सी दिस वन। इन रीजन्स नियर द नॉर्थ पोल इज़ कवर्ड कम्प्लीटली विथ आइस और स्नो। ओके, कुछ रीजन्स जो नॉर्थ पोल में होते हैं वो टोटली कम्प्लीटली किससे कवर्ड होते हैं? आइस से, पूरे बर्फ़ से या फिर स्नो से कवर्ड होता है वो पूरा एरिया। इन दिस एरियाज नो अदर बिल्डिंग मटेरियल इज़ अवेलेबल। एंड वो एरिया में और कोई बिल्डिंग मटेरियल जैसे सीमेंट, ब्रिक्स, स्ट्रॉ, वुडन पिलर्स एंड दिस वन व्हाट यू विल से स्लीपरी स्लैंटिंग रूफ्स एंड ऑल, ये अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके, सो व्हाट दे डू चिल्ड्रन, Therefore people living there make their houses with ice। so इसीलिए वहाँ के जो people रहते हैं वो लोग किस तरह से बनाते हैं अपने houses? आइस से ही बना लेते हैं, बर्फ़ से ही बनाते हैं। These houses are called igloos and वो houses को हम क्या बोलते हैं? igloos बोलते हैं। You can see here children in the picture also, right? Totally the house is made up of what? Cement and bricks? No, the house is made up of ice। पूरा आइस से बना हुआ है जिसका नेम है igloos। An igloo provides safety from cold winds। now here igloo क्या प्रोवाइड करता है? from cold winds। जो cold winds आते हैं वहाँ पर वो एरिया में, वो हाउस उनको प्रोटेक्ट करता है, उससे सेफ रखता है। हाउसेस इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। ओके, अब हाउसेस किस टाइप के होंगे? जहाँ पर ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता हो। ओके चिल्ड्रन, व्हाट डू यू मीन बाय द अर्थक्वेक? ड्यूरिंग द हार्डवर्ड्स आई सेड यू, अर्थक्वेक इज़ नथिंग बट जिसमें पूरा ज़मीन जो है अपना क्रैक हो जाना, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में ज़लज़ला बोलते हैं। राइट चिल्ड्रन, जिसमें पूरी अर्थ क्या हो जाती है? क्रैक हो जाती है, एंड कई सारा डैमेज भी अकर होता है। ओके, सो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ में किस टाइप के हाउसेस होते हैं? लेट्स सी। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक जापान देर आर फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक। सम एरियाज़ ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वर्ल्ड्स के कुछ ऐसे कंट्रीज़ एंड स्टेट्स हैं जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। एग्जाम्पल जापान। ओके, सो इन दिस जापान वी फेस फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक। ओके, अर्थक्वेक होते ही रहता है। ओके, सम टाइम ड्यूरेशन होता है लाइक 1 month, 2 months, 6 months, 1 year, then again earthquake will come। so like that intervals earthquake will come। they causes damage to permanent houses। and ये क्या करते हैं कि जो houses होते हैं permanent houses which are made up of water, which are made up of cement, bricks etc, तो उसको भी डैमेज करते हैं। therefore people living in such area make houses of wood। so इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि दे मेक द हाउसेस ऑफ वुड, वो लोग वुड के हाउसेस बनाते हैं। दिस डू नॉट कोलैप्स इन अ माइनर अर्थक्वेक। अब ये वुड क्या होता है कि जो छोटे मोटे जो अर्थक्वेक होते हैं उसमें कोलैप्स नहीं हो जाता, उसमें वो हाउस गिर नहीं जाता। ओके, तो बहुत ही स्ट्रांगली वहाँ पर स्टे करता है। इवन इफ दे कोलैप्स ड्यूरिंग अ मेजर अर्थक्वेक वुड डजंट कॉज मच इंजरी टू पीपल। ओके, दिस इज़ द मेन थिंग चिल्ड्रन। ओके, सो अगर वो कोलैप्स भी हो जाए फिर भी क्या करता है कि वो हाउसेस वो वुड के क्यों बना रहे हैं कि अगर बाई चांस अर्थक्वेक आ जाए एंड पूरा सा वॉल्स एंड ऑल पूरे कोलैप्स भी हो जाए तो किसी को ज़्यादा इंजरी नहीं होगी। ओके, अगर वही हम सीमेंट एंड ब्रिक्स के बनाएंगे एंड वहाँ पर अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा? जब भी वॉल गिरेगी तब कई सारे पर्सनस को इंजरी हो सकती है। सो जस्ट टू अवॉइड द सिचुएशन दे आर मेकिंग देयर हाउसेस विद द हेल्प ऑफ वुड सो दैट दे कैन बी सेफ। ओके, they won't get some kind of a big injury will be there लेकिन छोटी सी रहेगी, it will not be a big issue children। okay, so I hope you have understood the lesson। so we have seen some different kinds of houses also। okay, now let's come to the homework। see here children, answer the following question। okay, this is session 17, so we have to complete our second bit, answer the following question। in our session 16 I have given you the hard words, right children?
फर्स्ट वन, वाई डू वी नीड अ हाउस, हाउस क्यों चाहिए, वी नीड अ हाउस टू लिव इन, हमको उसमें रहने के लिए हाउस चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ पक्का हाउस, पक्का हाउस क्या है चिल्ड्रन, जो बिग और स्ट्रॉन्ग हाउस होता है उसको हम पक्का हाउस बोलते हैं. व्हाट आर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, द बिल्डिंग विच हैव मेनी फ्लोर्स, राइट चिल्ड्रन, द बिल्डिंग्स विच हैव मेनी फ्लोर्स आर कॉल्ड मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. ऐसा बिल्डिंग जिसमें कई सारे फ्लोर्स हों उसको हम बोलेंगे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. Why do houses have slanting roof? Houses को slanting roofs क्यों होते हैं? Why I said you? Yes, because the water quickly drains out from the roof and doesn't damage the house, children. Okay, जो water होता है वो roof पर stand नहीं करता, वो drains out हो जाता है, नीचे गिर जाता है and roof भी उसके safe रहते हैं. Where are houseboats found? Houseboats कहाँ पर रहते हैं? Houseboats are found in Kashmir and Kerala. This answer is little bit big children, but I made short for you. Houseboats are found in Kashmir and some states of Kerala and all. So I wrote Kashmir and Kerala. You can write the same. What is the use of stilt house? Stilt house का यूज़ क्या है चिल्ड्रन? I said you know कि ये houses थोड़े से प्लेटफॉर्म को रेज कर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं above high the ground so that they may not get any damaged from the floods. Now stilt houses are made on a raised platform. During floods their houses are safe as it stand high over the ground. So stilt house जो होते हैं वो raised platform पर बनाए जाते हैं एंड जब फ्लड्स आता है तब ये बिल्कुल भी सेफ़ है क्योंकि वो थोड़ा सा ऊंचाई पर बने हुए हैं. ओके, you can take the screenshot or even I will send you the pic of these answers. You have to write this answer with neat handwriting in your EVS notes. Okay, write one time this answer, put down the lesson name and bit and write down this. Okay, but make sure that you should write with the neat handwriting, very clearly you should write. So I'll be back with the next video and in that video I'll explain you objective part of the same lesson, houses, children. Okay, till then take care and have a nice day and keep doing your work.